Case number 2. When the remaining partners take profit share of retiring partner in an agreed ratio. यानी कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयर जो है दैट इज़ बीइंग एक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स एंड दैट दे आर एक्वायरिंग इन एन एग्रीड रेशियो और वी कैन से अ स्पेसिफिक रेशियो. तो इस केस में जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स की, दैट विल बी देयर एग्जिस्टिंग शेयर, दैट इज़ द ओल्ड शेयर, plus the acquired share or the gain. That will be the new profit sharing ratio of remaining partners. So let us understand this thing with the help of an example. यहाँ इस example में there are three partners L, M, N and they are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is 10. 5 by 10 L का शेयर है, 3 by 10 M का शेयर है, 2 by 10 N का शेयर है. M रिटायर हो गया. His profit share is taken by L and N, the remaining partners, in the ratio of 2:3. Now we have to calculate the new profit sharing ratio. Now in this question, L, M and N, these are the three partners. इनकी हमें ratio given है 5:3:2. Now in this question, M retires. तो M का जो share है M's share is equal to 3/10. His profit share is taken by L and N. अब इसका profit share जो है L और N acquire कर रहे हैं in the ratio of 2:1. तो they are acquiring this in 2:1. That is 2/3 जो है of 3/10 is acquired by L and 1/3 is acquired by N. 6/30 is acquired by L and 3/30 is acquired by N. इसको अगर हम simplify कर दें तो this is 2/10 and this is 1/10. So इतना share जो है L and N they are acquiring from M's profit share. तो जो L है, L की new ratio क्या हो जाएगी? L's new profit share will be his old share, that is 5/10 plus the acquired or gain, that is 2/10, that is 7/10 L का नया profit share है. And then N's new share, new profit share is equal to N का old share, that is 2/10 plus his acquired share, that is 1/10. It is equal to 3/10. तो यहाँ पे जो हमारी नई रेशियो आई that is among two partners, that is L and N. L का शेयर है 7/10 और N का शेयर है 3/10 which is equal to 7:3. So this is the way we will be calculating profit sharing ratio जब हमें क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक रेशियो गिवन है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर एक्वायर कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का. तो लेट अस रिकैप्चुलेट वंस मोर. इन दिस क्वेश्चन तीन पार्टनर्स हैं L, M, N और उनके हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2. M रिटायर हुआ, उसका प्रॉफिट शेयर L और N 2:1 में ले रहे हैं, दैट इज़ अ स्पेसिफिक रेशियोज गिवन. हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हमने L, M, N की ओल्ड रेशियो लिखी, एग्जिस्टिंग रेशियो लिखी, दैट इज़ 5:3:2. M रिटायर हो रहा है तो मैंने इसको सर्कल कर दिया. M का शेयर हमें 3/10 गिवन है. ये 3/10 L और N एक्वायर कर रहे हैं इन 2:1 रेशियो. दैट इज़ 2/3 ऑफ 3/10 L ले रहा है, L का गेन है, एंड 1/3 ऑफ 3/10 इज़ N's share, that is 1/10. This is 1/10 जो N का गेन है. अब L का जो न्यू प्रॉफिट शेयर है दैट इज हिज ओल्ड शेयर, दैट इज़ 5/10 प्लस द गेन 2/10. तो हमने यहाँ पे ओल्ड शेयर प्लस गेन फॉर्मूला यूज़ करा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो 5/10 इसका ओल्ड शेयर था, 2/10 इसने एक्वायर करा, दैट इज़ 7/10. N का जो न्यू प्रॉफिट शेयर है दैट इज़ हिज ओल्ड शेयर प्लस द गेन, दैट इज़ 2/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 3/10. तो L और N जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी न्यू रेशियो आ गई 7/10 is to 3/10 and the ratio is 7:3.
Now let us do another example based on this case number 2 only. A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. 2 plus 2 is 4, 4 plus 1 is 5. यानी कि 2/5 A का शेयर है, 2/5 B का शेयर है और 1/5 C का शेयर है. Now B retires in this question and his share is taken by C. यानी कि सिर्फ एक ही पार्टनर एक्वायर कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर. वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A and C, that is the remaining partners. So let's start with the solution for this question. Now in this question there are three partners A, B and C. इनके हमें रेशियो गिवन है 2:2:1. अब B जो है वो रिटायर हो रहा है, इसका शेयर C ले रहा है, यानी कि B's शेयर which is equal to 2/5 is taken or acquired by C. तो C's new profit share is equal to its old share, that is 1/5 plus the gain 2/5, which is 3/5 is C's new profit share. और जो A का प्रॉफिट शेयर है नया, that is the same. तो A's new profit share is his old share only, because there is no change in his profit share, that is 2/5. तो जो रेशियो आएगी A और C में, that is now, अब A और C जो है ये हमारे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स. तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज़ A की है 2/5 एंड C की है 3/5, which is 2:3. So this is the new profit sharing ratio of A and C. So इस क्वेश्चन में हमें A, B, C तीन पार्टनर्स दे रखे थे. इनकी रेशियो थी 2:2:1. इसमें B जो है दैट पार्टनर इज़ रिटायरिंग, तो हमने B को एनसर्कल कर दिया एंड देन वी आर राइटिंग हिज शेयर 2/5 जो कि C ले रहा है. C का जो न्यू प्रॉफिट शेयर है, दैट इज़ हिज ओल्ड शेयर प्लस द गेन, that is B's share which he has acquired 2/5. तो 2 plus 1 is 3/5 जो है हमारा C का न्यू शेयर आया. A का जो न्यू प्रॉफिट शेयर है, दैट इज़ हिज ओल्ड शेयर ओनली, दैट इज़ 2/5, क्योंकि इसकी रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ. तो न्यू रेशियो इज़ नाउ between A and C, that is the remaining partners, 2/5:3/5 equal to 2:3. So this is another example of case number